Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the molecular orbital theory. This is our next topic after hybridization. Today we will inshallah cover important aspects of MOT. MOT stands for molecular orbital theory, and bond order, application of MOT for homonuclear diatomic molecules. So these are the topics which we will cover. So let's we start with the MOT. First of all, there were some shortcomings in valence bond theory which we were discussing. Valence bond theory included hybridization and VBT itself. So there were some shortcomings in VBT. What were these shortcomings? Let's we have a look on that. So there were some shortcomings of valence bond theory. They didn't cover bond strength, bond order, and magnetic behavior. So these were few points which were not covered by the valence bond theory. So because of these 3 points, bond strength, bond order, and magnetic behavior, there was a need to develop a new theory which would explain the magnetic behavior of oxygen. Magnetic behavior of oxygen include paramagnetism and diamagnetism behavior of oxygen. Bond order include how many bonds will be formed, and bond strength include how much stronger the bond would be. Fine. So these were the shortcomings of valence bond theory. After that was the need of that time to design a new theory that would be included. The name was given molecular orbital theory. It was developed by Hurrid and Millikan in 1927 and 1928. The primary assumption of this concept was it was based upon the formation of molecular orbital. Molecular orbital is a very simple thing. Then when two atoms come to combine with each other, they form a molecule. Like एक bond बन जाता है दो atoms के दरमियान. So this is known as molecule. These molecular orbital would surround the nuclei of the bond atom, and two atomic orbitals which combine linearly would form two molecular orbital, including one with the lower energy. And that is this explanation. I will explain it further. That what is the meaning? It means के when two atomic orbital who combines with each other, like दो atomic orbitals हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक इनके कॉम्बिनेशन के टू एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं. दो तरीके से मिल सकते हैं. ये दो तरीके से किस तरह मिल सकते हैं कि या ये दो पार्ट्स में इसको कह सकते हैं कि वी कैन जस्ट डिवाइड दैम. हाउ वी डिवाइड दैम? वी डिवाइड दैम अकॉर्डिंग टू लोअर एनर्जी. एक मॉलिक्यूल जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इट कंटेन द लोअर एनर्जी, एंड उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज सेकेंड वन इज़ ऑफ हायर एनर्जी, एंड इट इज़ नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप देखते हैं, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पार्ट, दैट दिस is the 1s atomic orbital, this is the 1s atomic orbital, this is the atomic, and this is the atomic. We just want to form a molecule, and this is, suppose कीजिए कि this is the molecule. It is of lower energy, and it would be known as atomic molecular orbital. And when we are when we see above the plane, जो आपके पास, for example, this is your plane and it has been divided into two parts. So this is anti-bonding molecular orbital, and its shape is bit changed, and it is showing that there is no bond formation. Like यहाँ पर splitting हो रही है, तो एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाएंगे तो इट मीन्स के बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होंगे. एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इट मीन्स के बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. एंड दिस इज इट विल इंक्लूड सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच विल बी एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वेदर इट विल बी फॉर्म्ड, वेदर इट विल बी फॉर्म्ड और नॉट. सो वो हम लोग वन बाय वन देखते जाएंगे. बट यहाँ पर सिंपल ये बात जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहिए थी कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एक बॉन्डिंग में, जिसको हम BMO कहते हैं, this is BMO. BMO is bonding molecular orbital, and the second one is ABMO, anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital has higher energy, and bonding molecular orbital has lower energy. Okay, now read these words. Following energy diagram shows the formation of distribution of sigma bond molecular orbital into bonding and anti-bonding molecular orbital. This is what is written here. Okay, now comes the next slide. On the next slide we have this is a filling of these are the rules which we will follow to complete the MOT, and these are Aufbau principle. We will when we will fill the electrons in the orbital, so we have to take care of this thing, that we must follow Aufbau principle. Aufbau principle was about electron
electronic configuration that firstly you have to fill 1s orbital, then you have to go above the then you have to firstly you have to fill 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 2p6 3s, 3p6 4s 2 3d10 and so on, which we have studied in the previous chapter. Then we have a Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle says about the quantum number that all 4 sets of quantum number of 2 different atoms must not be same. It is what we have studied in the previous chapter. And next is the Hund's rule. Hund's rule was about if the electron have a chance to get into the single, if they can occupy a single orbital, so they don't want to be in a pair form with the with any of the orbital. If they get a chance, so definitely they move to the empty orbital to have a single spin. Fine. So these 3 rules we have studied previously, so we are going to follow all these 3 rules for the MOT as well. In rules को हम break नहीं करेंगे, and you will definitely see कि how we are going to apply them. The electron will tend to occupy bonding molecular orbital first because it is of lower energy. इसका मतलब ये है कि आप लोग जब अच्छा ये नहीं होगा कि सिर्फ बॉन्डिंग एग्जिस्ट करें, एंटी बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करें. व्हेन 2 एटम्स विल ट्राई टू कंबाइन विद ईच अदर, वहाँ दोनों तरह के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे. वहाँ ABMO भी होगा और BMO दोनों होंगे. तो हम उसको फिलिंग किस तरह से, हाउ वी फिल दैम, we will fill in a lower energy molecule first. Lower energy is bonding molecular orbital and वहाँ हम पहले electrons को enter करेंगे. और जब आपके lower energy में electrons enter हो जाएंगे तो then you will fill ABMO. Fine. So this is the concept जो आप लोगों को याद रखना है. The difference of energy between the energies of atomic orbital and bonding MOs overlapping depend upon the extents of overlapping of atomic orbital. This is all this whole story and this whole concept of MOT is all about overlapping, whether the bond will be formed or not. And it totally depend upon the number of electron entering in the BMO and ABMO. इसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कैसे होगा. Obviously this is the theoretical concept which I am telling you. आपको I'm sure कि समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, but once you will check the examples, so you will get to know that what I am talking about. Okay, on the next slide we have an example, and these are the orbitals diagrams जिन्हें हमने हर दफ़ा बनाना है, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एनी एलिमेंट जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s के ऊपर ही ख़त्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s पे हो जाती है, सो यू विल नॉट ड्रॉ 2s एंड 2p. बट इफ़ वी हैव अ कॉन्फ़िगरेशन गोइंग अपवर्ड, 1s के बाद 2s पे जा रही है, तो आप लोग यहाँ तक बनाएंगे. और अगर आपके पास इफ़ यू हैव 2p ऑर्बिटल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आपकी जा रही है, तो आप डेफिनेटली ऊपर तक के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. किस तरह से बनाएंगे, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. बट ये है कि इस तरह से हम लोग अपवर्ड बनाते हुए जाते हैं. एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब नीचे सबसे नीचे आपके पास 1s आएगा जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है, एंड दिस इज़ योर BMO सिग्मा 1s से जिसको शो कर रहे हैं. एंड स्टेरिक से जहाँ जहाँ स्टेरिक से चीज़ शो की गई है, दिस इज़ ABMO. फाइन. सो जिस तरह 1s का सिग्मा है, उसी तरह एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा स्टेरिक है. 2s का देखिए, एंड 2s का सिग्मा स्टेरिक है, एंड सो ऑन. वो आगे जो 2p वाला है उसके अंदर थोड़े से डिफरेंट केसेस होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसके अंदर किस तरह से किया जा रहा है. लेकिन आप लोग सिंपल यहाँ 2s तक की तो बात समझ लें कि पहले आपने 1s के लिए 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, फिर आपने 2s के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एंड वाई आई एम राइटिंग here like 2s here and why I am writing here 1s here 2 times, because आपके पास ये जो 1s यहाँ पर आ रहा है, this one, और ये 1s यहाँ पर आ रहा है because we are using two atoms. So 2 atoms की जब बात करेंगे तो एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आएगी, दूसरे की यहाँ आएगी. सिमिलरली इट गोज़ विद द 2s केस के हमारे पास एटम्स कितने हैं, we have 2 atoms. Fine. So that's why we are writing it 2 times. Okay, and this is a BMO and this is a ABMO, and these are the terminologies which I will use again and again. I am not going to say bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. BMO bonding and ABMO anti-bonding. Okay, now there is another point that what we have to calculate, as I have told you that VBT was failed to explain about the bond order, bond strength and magnetic behavior. Bond strength and bond and order are actually interrelated with each other. Bond strength means कि how strongest the bond would be. Bond strength totally depend upon the number of bonds. Obviously जितने number of bonds आप बढ़ाते जाएंगे, bond strength क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी. इसी तरह bond order है. Bond order क्या है कि कितने number of bonds आपके पास फॉर्म होंगे. किसी भी चीज़ के अंदर number of bonds कितने हैं,
हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट H2 मॉलिक्यूल, दिस इज़ H2 मॉलिक्यूल, हाउ मैनी bonds are here? Obviously there is a one bond, so this is the bond, one bond is the bond order of hydrogen. Similarly if you check the oxygen, like this is the structure of oxygen, and how many, what is the bond order for oxygen here? We have two bonds here, so we will say this one is the strongest, the bond strength of the oxygen O2 molecule is strongest than the H2 molecule, and this is what VBT was explained, VBT was failed to explain, that's why we are studying MOT. Okay, so we will also calculate bond order. And how do we calculate it? Number of electrons in BMOs, number of electrons count किए जाते हैं जो bonding molecular orbital में होता है. टोटल जितने bonding molecular orbital में इलेक्ट्रॉन होंगे आप वो सारे काउंट करोगे, and then you will subtract it from number of electrons in ABMO. ABMO means anti bonding, number of electrons in ABMO, and then you will divide with the 2. This is the fixed formula. इसी formula को apply करते हुए we will calculate BO, bond order. Okay. Application of molecular orbital theory of homonuclear diatomic molecule, and firstly we are going to study about the hydrogen molecule, and I have animations, so मैं आपको वो animations दिखाऊंगी, and then I am going to explain the structure of structure here. Fine, so let's we start with the animations first, कि जहाँ पर आपको proper तरीके से दिखाया जाएगा कि how you are going to fill that. So let's we start. Okay, so this is the first structure we have, that is about hydrogen, and we will check whether the bond between hydrogen and hydrogen atom, two hydrogen atom will come to combine with each other and will try to form a bond. MOT के अंदर हम ये भी बता सकते हैं कि bond form होगा या नहीं होगा. So as you can see we have two hydrogens here, and these two hydrogens are trying to form a bond. This is the configuration of hydrogen. We have a 1s1 and 1s1. Fine, so we will just try to check whether the bond will be in the plus form or a minus form. Plus form stands for the this BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के अंदर एक दो बॉल्स को अगर आप सेम कर दें तो वो स्ट्रक्चर बनेगा, एंड देन यू हैव अ ABMO के लिए स्ट्रक्चर आपके पास ये होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा. ओके, दिस इज़ द बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दिस इज़ नॉट अ बॉन्ड फॉर्मेशन. वो बीच में से एक स्प्लिटिंग का साइन आपको नज़र आ रहा है, दोनों को एक साथ हम देख रहे हैं. दिस इज़ सिग्मा एस एंड दिस इज़ सिग्मा स्टेरिक एस, जिसके अंदर बीच में एक ब्रेक सा नज़र आ रहा है. ओके, नाउ वी विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. एज यू कैन सी नीचे आपके पास कौन होगा, नीचे वी हैव BMO और ऊपर कौन है, ABMO. BMO की एनर्जी कम है, ABMO की एनर्जी ज़्यादा है, और अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन हम फिल करवाएंगे तो वहाँ एनर्जी इस तरह से होगी. नाउ कम्स द मेन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. What is the electronic configuration of hydrogen? It is 1s1. You will simply write 1s1 on the both side. How many electrons now you have? कितने electrons हैं टोटल आपके पास? You have 2 electrons. एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ है. You will try to fill the electrons. और fill करोगे आप इलेक्ट्रॉन तो एक, let me repeat it. जी, आपने दोनों साइड पे जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी यहाँ पर, तो यहाँ 1s1 था, यहाँ 1s1 था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दोनों. तो दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे फिल हो जाएंगे. तो क्या ABMO में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके पास? द आंसर इज़ नो. ऊपर के लिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा ही नहीं है. ऊपर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब बचेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ये पार्ट है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा. तो हम अब काउंट करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सारे 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ फिल हो गए. वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे BMO में उसके अंदर फिल हो गए. अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग इसके अंदर हो रही है या नहीं हो रही, इसके अंदर किस तरह से केस चल रहा है. सो ये सिर्फ इलस्ट्रेशंस इसकी दोबारा से रिपीट हो रही हैं कि ABMO होगा तो उसको ऑर्बिटल फॉर्म में जब आप शो करोगे तो कैसे करोगे, बट यू डोंट नीड टू शो दीज डायग्राम. आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो बताएंगे. नोडल प्लेन बता रहे हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस 0 होती है. ठीक है जी. सो अब भी हम चेक करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बन रहा है या नहीं बन रहा. सो देखें आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ गए, तो यानी कि आपके अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे तो दिस शोज़ कि आपके पास बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा. बट हम इसको ऐसे ही नहीं बताएंगे, हम इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करेंगे. आपको मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं, 2. एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0, एंड यू विल सिंपली डिवाइड इट विद 2. सो द आंसर इज़ 1. सो वी नो वेरी वेल कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर निकलता है 1. सो ये जो आपके पास सिंगल बॉन्ड निकलेगा, दिस शोज़ कि आपके पास क्या है, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा. नाउ चेक द सेकंड एग्जांपल, इट इज़ ऑफ हीलियम. हीलियम के केस में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी स्टॉप द वीडियो. इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2. सो यानी कि आपके पास जो दोनों हीलियम, दोनों साइड पे हीलियम्स हैं, इधर भी आपके पास 2 होंगे, इस साइड पे भी आपके पास 2 होंगे. और जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 नीचे जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे. एज यू कैन सी 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नाउ काउंट द बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर काउंट करोगे तो 2 ही नीचे, 2 ही ऊपर, तो टोटल 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज़ 0. सो इट मीन्स कि हीलियम का हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती उसकी जी. सो अब हम अगर एग्जांपल्स चेक करते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर एग्जांपल दिखाई हाइड्रोजन की, लेट वी चेक इट अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. इट इज़ 1s1 1s1. यू विल सिंपली राइट द एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हेयर एंड देन यू विल डिवाइड इट इनटू द 2 पार्ट्स. वो आपने डिवाइड कर लिया, बॉन्डिंग अलग हो गया, एंटी बॉन्डिंग अलग हो गया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, हेयर वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, हेयर वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन. बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन विल बी गेट ऑक्युपाइड हेयर एंड यू विल सिंपली राइट लाइक 2 यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी एम्प्टी फॉर हाइड्रोजन केस. Fine. And when you will check the bond order, so 2 - 0, obviously you don't have electron in the anti bonding, so it would be 0. इधर आप 2 लिख दोगे क्योंकि फार्मूला में BMO माइनस एंटी बॉन्डिंग है, और डिवाइड 2 करोगे तो आंसर आएगा 1. सो इट मीन्स के हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विल हैव अ सिंगल बॉन्ड. दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. नाउ चेक द सेकंड एग्जांपल. वी हैव अ सेकंड एग्जांपल, इट इज़ ऑफ हीलियम. एज वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज़ 2. सो दिस इज़ 1s2, दिस इज़ 1s2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 4. So 2 electron we will fill it here, and 2 will be 2 will get filled in the anti-bonding molecular orbital. And when you will put in the formula the value of anti-bonding and bonding, so this 2, एक मिनट, this 2 and this 2, 2 - 2 divided with 2, the answer is 0. So it means कि we will say there will be no bond formation in helium. You can write it like this कि आपके पास जो हीलियम है, हीलियम और हीलियम के दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा. अच्छा, वैसे भी हीलियम और हीलियम के दरमियान बॉन्ड हमें वैसे पता है नहीं बनता, बिकॉज दे बोथ आर नोबल गैसेस. सो दिस साइन शोज, मैं ये कर रही हूँ, ये बॉन्ड नहीं बनेगा. ठीक है, दिस इज़ नॉट एडिशन एक्चुअली, ये बॉन्ड नहीं बनने के लिए मैं ये साइन यूज़ कर रही हूँ. सो दिस शोज के दिस इज़ द नोबल गैस, सो इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी. दैट वॉज द थिंग विच वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय VBT, एंड इट हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय लिथियम मॉलिक्यूल. नाउ वी चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल. वी हैव lithium now, and first of all write down the electronic configuration of lithium. The atomic number of lithium is 3. It is 1s2. I am writing the electronic configuration of lithium. It is 1s2 and 2s1. Why we are writing here just the electronic configuration of 2s, because 1s2 की कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी जो हाइड्रोजन के केस में थी, जो हम पीछे देख रहे थे. ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन तो आपके पास वही रहेगी. सो वो वही होगा कि आपके पास, सॉरी हाइड्रोजन की नहीं, हीलियम की जो हम पीछे देख रहे हुए आ रहे हैं. इसको अगर फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंट आप 1 सिग्मा कंसीडर कर लें और इसको 1 सिग्मा स्टेरिक कंसीडर कर लें, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये तो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा. तो दैट्स वाई वी आर नॉट रिपीटिंग इट, वी आर जस्ट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2s1. आप पेपर में भी टाइम शॉर्ट हो तो आप जस्ट उस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जो आउटर मोस्ट होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अंदर वाला तो कम्प्लीटली फिल हुआ हुआ है ना, तो उसको मत लिखिए, उसको काउंट भी नहीं करेंगे फिर हम जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे. बॉन्ड ऑर्डर वैसे करना हमें पूरा ही होता है, लेकिन ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम हम सिर्फ बाहर वाले भी लिखते हैं, तो हमारा आंसर वैसे सही निकलता है, गलत नहीं होता. ओके, सो फॉर द लिथियम केस वी नो वेरी वेल दैट इट इज़ 1s2 and 2s1. सो 2s1, so it means कि both of the lithium will be having 2s1. इसके पास भी कॉन्फ़िगरेशन यही है 1s2 and 2s1, एंड इसके पास भी 1s2 and 2s1. तो इट मीन्स कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दीज बोथ इलेक्ट्रॉन विल गेट फिल्ड इन द sigma 2s orbital, and there obviously there is no electron left for the sigma steric और anti bonding. so आप जब BO निकालोगे इसका तो वही होगा कि 2 - 0, as you can see 2 - 0 upon 2, because तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1. फाइन, दिस इज़ द केस ऑफ lithium molecule. now check the second one. it is a beryllium molecule. For beryllium molecule we have configuration, and the configuration is 1s2 2s2, 1s2
2s2, it means के they both are complete, they both will be completely filled, 1s2 1s2 and 2s2 2s2. सो आपने जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो इसमें देखिए इसके अंदर पूरा का पूरा दोनों के बारे में लिखा हुआ है, तो आप लोग आई विल सजेस्ट कि आप कोशिश करें दोनों की बनाने की. आप लिथियम के केस में भी सिर्फ ये कम्प्लीटली बनाना है आपने, ऊपर वाला चेंज होगा बेरिलियम, नीचे वाला सेम ही रहेगा सबके केस में, 1s2 जिनका कम्प्लीटली फिल होता है. सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर डिफरेंस होता है, वो हमने आपको दिखा दिया है. ओके, सो मैं सिर्फ आपको 2s2 बता रही हूँ. देखिए ज़रा 2s2 के केस में ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 and 2 4, so 2 will get filled in the sigma 2s and 2 will be filled in the sigma steric 2s. Fine. So now we check the bond order. If we will check the bond orders, firstly calculate the number of electron in BO, bonding orbital. Firstly check the electrons in the bonding orbitals. Bonding orbitals कौन कौन से हैं, 1s and 2s. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 एंड दिस वन 2, this 2. So total कितने हैं, 4 divided with 2. So the 0 divided with 2 answer is 0. So what we will say कि there is no bond formation between beryllium. There will be no बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इन बेरिलियम. सो आंसर हमारे पास लिखा हुआ है कि आंसर 0 है, तो कोई बेरिलियम मॉलिक्यूल नहीं बनेगा. ठीक है, Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता. दिस इज़ व्हाट वी हैव एक्सप्लेन. नाउ चेक द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव ऑफ बोरॉन, एंड इन बोरॉन वी हैव अ कॉन्फिगरेशन. इट इज़ वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन. इट इज़ एटॉमिक नंबर इज़ 5. B is 5, 1s2 2s2 2p1. So what is new here? We have the same configuration as we have written for the beryllium. यहाँ तक तो सेम है. The new thing is 2p आ गया है. सो यहाँ तक एज आई सेट कि आप नीचे वाला केस सेम रहेगा. जो बेरिलियम का केस है वो बनाते जाएँ, आप लोग कम्प्लीटली फिलिंग होती जाएगी. हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर हम लोग 2s को देख रहे हैं. 1s बनाएं ना बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, सो यहाँ आपने ये लेट मी शो कि आप ये वाली चीज़ यहाँ तक कंप्लीट बना सकते हैं. एनर्जी दिखा दें और टाइम है तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बनाते हुए चलें. लेकिन जब टाइम नहीं होता तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट की बना सकते हैं. आप सिर्फ 2s की बना दें. ठीक है, सो 2s आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. एज आई हैव रिटन हेयर कि 1s2 नहीं बना रहे हम, 2s2 एंड 2p1. सिमिलरली गोज़ विद दिस साइड ऑल्सो. 2p1 दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और आपकी मर्ज़ी है आप इलेक्ट्रॉन x में डालते हैं, y में डालते हैं, z में डालते हैं. बट द चेंज पार्ट हेयर इज़ कि आपने ऐसे नहीं करना कि आपने उसकी स्प्लिटिंग कर देनी है सिंपल तरीके से, जैसे हम एक सिग्मा नीचे लगा रहे थे और एक सिग्मा ऊपर लगा रहे थे सिग्मा स्टेरिक में. p का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसके, बिकॉज वी हैव 3 ऑर्बिटल्स. As you know, we have px, we have py and we have pz. Similarly goes with the second part, second atom also, px, py and that one is pz. जब हम ये बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इधर भी एक है इधर भी एक है, वो किसी में भी हो सकता है, px में हो, py में हो, pz में हो. हमें स्प्लिटिंग इसकी इस तरह से करनी होती है कि हम इसके अंदर जो px है उसको ऊपर उसके अंदर भी जो आपके पास सिग्मा पार्ट होता है और जो पाई पार्ट होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में. अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें कि हमने इसको डिवाइड किस में करना है. हमने इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, जो एनर्जी लेवल्स भी हैं. जो आपका बॉन्डिंग है पी का, उसको भी आपने BMO के पार्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो आपका एंटी बॉन्डिंग है स्टैटिक वाले हैं उसको भी आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. अभी तक हमने नहीं किया था, बट हेयर वी आर डिवाइडिंग इट. हाउ वी आर डिवाइडिंग इट, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि किस तरह से करेंगे BMO के अंदर कि आपने यहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन और कार्बन, जो बीच में नाइट्रोजन तक के जो एलिमेंट्स आएंगे, उनके अंदर स्प्लिटिंग ये करनी है कि आपने px को ऊपर बनाना है, py और pz को नीचे बनाना है. ये इसके अंदर स्प्लिटिंग होती है. एज वी नो दैट p ऑर्बिटल कंटेन px, py, pz. फाइन. सिमिलरली गोज विद द एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग में भी px, py, pz होगा, बट वो स्टेरिक के साथ लिखना है. तो उसके अंदर हम ये करेंगे कि हम py और pz को नीचे लिखेंगे और px को ऊपर लिखेंगे. कहाँ तक के केस में आपने यही चीज़ फॉलो करनी है, नाइट्रोजन तक के केस में. नाइट्रोजन तक के केस में आपके पास बोरॉन आ रहा है, आपके पास कार्बन आ रहा है, आपके पास नाइट्रोजन आ रहा है. ठीक है, ये 3 आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं. और एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा ऊपर, px ऊपर आएगा और py, pz नीचे रहेंगे. ठीक है,
जैसे यहाँ पे बना रहे हो सिमिलरली इसी केस में आपने ऊपर बनाना है। फ़ाइन। अच्छा, अब यहाँ पे फिलिंग कैसे होगी? फिलिंग का तरीका वही है जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब देखिए जो चेंज पार्ट है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 2। सो ऐसा भी तो हो सकता था कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देते। हम इन दोनों को अलग अलग ऑर्बिटल में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव स्टडीड हुंड्स रूल एंड आई हैव सबसे पहले आई हैव एक्सप्लेन यू दिस पार्ट कि वी आर गोइंग टू फॉलो ऑफ बोर, पॉली एंड हुंड्स, ऑल थ्री रूल्स के अंदर हुंड्स रूल ये कहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन को जब मौका मिलेगा, मतलब अगर मैं इन दोनों को यहाँ लगा देती हूँ, ये खाली होता है, इसके अंदर कुछ ना होता तो ये एम्प्टी रह जाता, हैं तो एक ही लेवल के ना दोनों, तो आपके जब इलेक्ट्रॉन को मौका मिलता है नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाने का तो वो कभी भी पेयर की फॉर्म में नहीं रहता, वो कोशिश करता है कि वो सिंगल ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करें, एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम फिलिंग द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। फ़ाइन। अच्छा, तो आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो गए हैं, कहाँ ऑक्यूपाई हो गए हैं? सिग्मा में ही ऑक्यूपाई हो गए हैं। यू डोंट हैव यहाँ तक ये बॉन्डिंग ही है, डोंट फॉरगेट कि ये एंटी नहीं है ये बॉन्डिंग ही, बट इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं हैं, px थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, रीज़न क्या होता है इसका, क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, रीज़न इसका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डालते हैं, वो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करी, वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल सिर्फ इसको आपने याद कर लें, इसको समझ लें कि यहाँ हो क्या रहा है, कि यहाँ पर हम px को ऊपर बना रहे हैं, ठीक है? ओके, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फिल दिस। नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर में हमारे पास जी बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं? जो ये वाले हैं, 2 and 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव? 4। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें 4, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 डिवाइडेड विद 2, सो द आंसर वुड बी क्या आंसर होगा? 4 - 2 2, सो द आंसर वुड बी, इट्स रॉन्ग, 1 होगा, ठीक है? सो अच्छा, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट किया, लेकिन एज आई सेड कि हम लोग कैलकुलेशंस जब करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसके लिख दिए हैं, बाहर वाले लिख दिए हैं, इसके लिख दिए हैं, तो आप लोग इस बात पे परेशान नहीं हुई कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? मैंने आपको टोटल काउंट करके दिखाए हैं, इनके, और यहाँ जो कैलकुलेशन की हुई है वो सिर्फ इनकी की हुई है, तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसको अगर हम देख लेते हैं, अगर आप उसको काउंट करते हैं जो मैं आपको बता रही थी, 2 ये और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 थे, डिवाइडेड विद 2 फार्मूला का, सो आंसर आता है हमारे पास टोटल 1 आता है, ठीक है? सो 1 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास बोरॉन है, बोरॉन मॉलिक्यूल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? इट विल फॉर्म 1 बॉन्ड बन सकता है, एग्जिस्ट नहीं करता, हम देखते नहीं हैं, बट हमें ये बताना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, इसके बाद हमारे पास आंसर यहाँ पे गलत लिखा, 0 लिखा हुआ है, तो 0 बॉन्ड आंसर नहीं आएगा, आंसर इधर 1 आएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत थी, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 आएगा ना आंसर, तो 0 लिखा हुआ है, ये गलत है। अच्छा, नेक्स्ट आइए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एज आई सेड के नाइट्रोजन के अंदर, अच्छा, नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? नाइट्रोजन के केस में हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 होता है, और एटॉमिक नंबर 7 जब होता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे, 1 मिनट जी, नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी 1s2 2s2 2p3, ये होता है, ठीक है जी, 2p3 होता है। तो आप 2s2 तक तो बनाएं ना बनाएं आपकी मर्ज़ी है, हम डायरेक्ट 2p3 पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास इसको तो हम वैसे ही काउंट नहीं कर रहे हैं 2s2 को, हाँ, लेकिन बनाना होता है, ये मैं फिर बता रही हूँ, टाइम की कमी की वजह से आप छोड़ रहे हो उसको, अदरवाइज़ ये है कि इसको छोड़ते नहीं है, हम लाइन से चलेंगे, हम पहले 1s बनाएंगे, फिर हम 2s बनाएंगे, फिर हम 2p बनाएंगे, ठीक है? तो हम लाइन से पूरा पेज एक भरते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स को, और जब हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो कि किस तरह से आपने पूरे पेज पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और टेस्ट भी होंगे इसके प्रॉपर तरीके से। ओके, सो नाउ कम्स द 2p3 पार्ट। नाइट्रोजन के केस में अगर हम देखते हैं तो दोनों नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 1s2 2s2 2p, आउटर मोस्ट जो है वो 2p3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी 2p3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। स्प्लिटिंग करेंगे हम, जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो एज आई सेड के 2px 2py नीचे रहते हैं, 2p, अच्छा, ये इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका px कौन सा है, py कौन सा है, pz कौन सा है, आप इसे जिस भी तरीके से लिखो, आप pz को ऊपर लिख रहे हो, आपकी बुक में हो सकता है px ऊपर लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप pz कहो, px कहो, py को, बिकॉज दे ऑल 3 हैव सेम एनर्जीज, दे ऑल 3 हैव
हैव सेम शेप, सो हम इसके अंदर ये करते हैं। बस फ़र्क ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे 2pz लिख रहे हो ऊपर, तो यहाँ पे भी 2pz ही ऊपर लिखना, यहाँ 2px लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 2px ही लिखना। बट ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप x को शो करो, z को ना शो करो, आप x को शो करो, क्योंकि x पहले आता है, दैट्स वाई उसको पहले लिखा जाता है, वो पहला बॉन्ड है, दैट्स वाई मैंने पीछे जो आपको बताया था वो x ही बताया था। ओके, नाउ काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन, 3 and 3 6। सबसे पहले सिंगल फिलिंग करोगे आप, सबके अंदर नीचे नीचे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। फिर इनकी डबलिंग फिलिंग करोगे तो ऑब्वियसली 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो अब निकालें आप बॉन्ड ऑर्डर में काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बॉन्डिंग में और कितने एंटी बॉन्डिंग में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके चेक करते हैं, ठीक है। इसके जब चेक करेंगे तो देखिए क्या था, हमारे पास फार्मूला होता है BO का, बॉन्ड ऑर्डर का, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO, ठीक है, डिवाइडेड विद ABMO डिवाइडेड विद 2। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस ABMO के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0 डिवाइडेड विद 2। सो आंसर कितना आएगा 3। सो इट मीन्स कि नाइट्रोजन का आप मॉलिक्यूल बनाओगे तो आपने पीछे भी देखा था, नाइट्रोजन का जब हम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो बॉन्ड कितने बनते हैं 3। सो दिस इज़ ऑल्सो शोन बाय द MOT ऑल्सो, फाइन। अच्छा, अगर आप इधर से इस फार्मूला से निकालते हो तो यहाँ पर भी उन्होंने नहीं यूज़ किया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से काउंट करके भी निकालोगे ना तो आंसर आपका 6 ही आएगा। चलें चेक कर लेते हैं। ये आपके 2 हैं और ये आपके 1 2 3 कितने हो गए 8 हो गए। 8 माइनस 2 डिवाइडेड विद 2, सो आंसर इज़ 6। 6 डिवाइडेड विद 3, सो आंसर 2, सो द आंसर इज़ 3। सो यहाँ अगर आप इनको भी काउंट करते हो तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इस बात से परेशान नहीं होएगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस मस्ट बी प्रॉब्ली, अच्छा इसके बाद फ्लोरीन भी है, ओके कोई मसला नहीं है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 1s2 2s2 2p, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2p4। सिमिलरली गोज़ विद द सेकंड पार्ट ऑल्सो 2p4 एंड 2p4। और मैं आपको सिर्फ 2p4 की जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रही हूँ, ये देखिए 2p4 यहाँ आ गया। अच्छा, ऑक्सीजन एज ए सेट के नाइट्रोजन के केस तक हम लोग px को ऊपर लिखते थे, अब यहाँ देखिए यहाँ आपका px, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ आपका px नीचे आएगा और py pz ऊपर जाएगा। रीज़न यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डालते हैं कि वहाँ जो नाइट्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपस में असल में उनके एनर्जी के लेवल्स करीब करीब होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन का करैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से px ऑर्बिटल नीचे से ऊपर शिफ्ट कर जाता है, उसकी रीज़न ये थी। लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद के जो एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं, उनके एनर्जी लेवल्स के अंदर डिस्टेंस कहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए px नीचे ही रहता है और py pz ऊपर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक के केस में आपने क्या करना है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीजन के बाद से, भले आपका ऑक्सीजन है भले आपका फ्लोरीन है, आपने एक px ऑर्बिटल नीचे बनाना है और py pz ऊपर बनाने। ऊपर वाला केस सेम रहेगा, ऊपर वाला केस क्या सेम रहेगा कि ये px ही रहेगा और ये आपके py और ये आपका pz ही रहेगा, जो पीछे था सेम रहता है। केस सिर्फ और सिर्फ BMO के अंदर चेंज होता है, ABMO सबका सेम रहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हैं, यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, कीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल। 6 इलेक्ट्रॉन तो आपके यहीं फिल हो जाएंगे और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो सिंगल स्पिन ऑक्यूपाई करेंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग हुंड्स रूल पढ़ रहे हैं, ऊपर चले गए। अब यहाँ पर आपने निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो निकालें आप क्या आंसर आ रहा है। इधर आपका आंसर आएगा BMO के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें 6 माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 डिवाइडेड विद फार्मूला का 2। सो ऑक्सीजन, इसका आंसर आपके पास क्या निकलेगा 6 माइनस 2, इट इज़ 4/2, सो द आंसर इज़ 2। सो वी विल से कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो 2 बनता है, ठीक है। सो ये हमें पता है और यहाँ अगर हम आंसर भी चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर भी इसका 2 आता है। जो चीज़ ध्यान में रखने की है वो ये चीज़ मत भूलिएगा, ये चीज़ आप गलत बना देंगे तो स्ट्रक्चर गलत ही काउंट होता है, इट इज़ नॉट करेक्ट वन। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज़ फ्लोरीन। जस्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एज वी नो कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज़ 9, सो 1s2, इट इज़ 1s2 2s2 2p5। सो इट मीन्स कि
2p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इधर हैं 5 इधर हैं, करें फिल इसको, यहाँ 6 होंगे, हो जाएंगे आपके पास, और जो पीछे आपके पास 4 बचेंगे वो आपने यहाँ तक फिल कर देने हैं p x के अंदर। मैं उसको p x कह रही हूँ, यहाँ p z लिखा हुआ है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लिख दें, ठीक है। सो यहाँ नहीं जाएंगे बिकॉज फर्स्टली वी हैव टू फिल द लोअर ऑर्बिटल्स। सो now calculate the BO. So when we will calculate the BO, so we have 6 electrons here and 4 electrons in the anti-bonding molecular orbital divided with 2. So the answer is 6 minus 4, 2 by 2. So the answer is 1. So it means that fluorine with fluorine will form a single bond. This is how fluorine will form a bond. Fine. So that is the MOT structure. यहाँ अभी complete MOT नहीं हुई है. Make a lot of practice. और अगर आपको कोई भी confusion है तो do ask. अल्लाह हाफ़िज़.